Hello guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and got this class all about MEG 01 last hour preparation. Yes, last hour preparation. काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट करते सर आपने हमें फाइनल क्वेश्चंस नहीं दिए. You don't give the questions that we guys need to prepare for our final preparation. These questions are being known as the essay type questions that you guys have to prepare for your examinations. So यार 2 दिन रह गए हमारे पास. The final questions are here. I'm sharing these questions with you all guys. Definitely I'm going to share this on my Insta ID too. But here definitely I'm going to tell you how to write the answer of these questions. ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं होंगे, आंसर्स भी होंगे जिनको फॉलो अप करना है. आप लोगों ने चीज़ों को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड द बेसिक थिंग दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट कैसे चलेंगे, चलने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स आपको बिगिनिंग से लास्ट तक आने चाहिए. So please have a pen and notebook along with you so that you can write on each and everything. This is really very important. The first thing that we guys need to have is, sir, the paper really can be in form of the essay type as we do have the last 4 to 5 times, or we have the complete RTC. Now this discussion never been over because we don't know which pattern is going to come. Maybe the complete essay type, maybe complete RTCs. So how we're going to prepare, how we're going to do the master of it. So here are the questions, guys. Please write on these questions. These are the questions for you that you guys need to prepare for your first paper. That's MEG 01. The first question: locate Chaucer prologue to the Canterbury Tale with the vast writing career as a social commentary of the age. So now I'm do telling you one thing, that this question can become in form of critical appreciation of poet Geoffrey Chaucer. Yes, I repeat, critical appreciation of the poet Geoffrey Chaucer. Yes, it can come in that form too. So question come from each block. Definitely questions come from each block. So we need to prepare just these questions. And I'm 100% sure you guys need not do anything else. Just do these questions. Just do these questions. That is more than enough. So if you're going to do just these questions, then there will be no issue with you that how to prepare these, for the basic terms that we need to keep in our mind while preparing these questions, and how guys really going to get each and every point clear. So am I repeating this really phrase, how to do this, जिसके concept क्या है, कौन कौन चीज़ें आपको आनी चाहिए. Definitely I'm going to repeat the questions. I hope you guys have been writing this. The first question, again I'm repeating the first question: locate Chaucer prologue. I repeat, locate Chaucer prologue to Canterbury Tale within his vast writing career as a social commenting of the age, because he was depicting the age, the era, through his different prologues. Prologues are being the introductory part of pilgrimages. Those are pilgrimages being mentioned in the Canterbury Tales have been defined by Chaucer in their prologues. So this question is the most expected that you're going to have in your paper. The second question, guys: do you think that the three major sources, I repeat, do you think that the three major sources of Chaucer vocabulary contribute to his poetry? Now we guys need to understand, say तीन major sources कौन से हैं जो चौसर की राइटिंग में आते हैं. तो फर्स्ट मैंने क्या बोला, फर्स्ट मैंने डेफिनेटली बोला आप लोगों को लोकेट करें. बच्चा मैं ब्लॉक वाइज ही बोल रहा हूँ, रिया लेसन क्या बोली, इस ब्लॉक वाइज. सो प्लीज़ राइट डाउन दीज ब्लॉक वाइज क्वेश्चन. ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करने, आप इनको बड़े आराम से क्लियर कर लोगे, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. First, locate Chaucer prologue to Canterbury Tales within the vast writing career as a social commenting to the age. Second, do you think that the three major sources of Chaucer vocabulary contributed to his poetry? Discuss in detail. So these are the two questions that we guys need to understand. कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, चीज़ होगा, कैसे कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है. दैट ऑल बीन हेयर. सीरियसली वो सारा का सारा यहाँ पे आपको फॉलो अप कर लेना है. अगर आप करते हो तो इट्स ग्रेट टू डू ऑल. इफ़ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू दिस, तो आपको हेल्प मिलेगी पक्का. या ट्रिकी चैनल सर जी मेरा एग्जाम है, नीड गाइडेंस. डेफिनेटली बच्चा प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेश्चन. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. आप उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा. Along with that, those who are really watching the video, concept clear हो रहा है, चीज़ समझ में आ रही हो, तो do like and share the video too. Really, if it's helpful for you. Come up to the third question. First two question I hope आप सबने लिख लिए हैं. The first question: locate Chaucer prologue to Canterbury Tale with the vast writing career as a social commenting the age. Second, do you think that the three major sources of Chaucer vocabulary contribute to his poetry? Discuss in detail. Third question we are having: attempt an analysis of the portrait of the Paris monk, Fairy, and Alison.
आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, कहता है अटेम्प्ट एंड एनालिसिस। जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट को मैंने पहले करवा रखे हैं कि यार ये वाले करेक्टर्स आपको आने चाहिए, या मैं आप सबको बोल रहा हूँ, एवरी वन सीरीज, एवरी वन दोज बीन वॉचिंग दिस लाइव सेशन, इट्स जस्ट फॉर यू गाइस। तो आप लोग प्लीज फॉलो अप करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, अटेम्प्ट एंड एनालिसिस ऑफ द पोर्ट्रेट्स ऑफ द प्रिंस, द रोमैंक Paris, monk, knight, scare, fairy, and the wife of Bath. Wife of Bath means the Alison. Yes, कुछ अलग नहीं है, wife of Bath, Alison के ही बोला गया है, उसको आपको क्लियर करना है। Repeating the question, guys. Attempt and analysis. Yes, attempt and analysis of the portrait of Paris, the monk, the fairies, and the wife of Bath. First three questions. I hope you are being clear with the three questions. The first three. Jump up to the fourth question. This is really important. The fourth one is here. What do you understand by the term Renaissance? ये रेनेसा क्या होता है? रेनेसा को डिफाइन करना पड़ेगा। ये वो पीरियड था यूरोपियन हिस्ट्री का जहाँ कवर करता 14 to 17 सेंचुरी, जिसके अंदर एक्सटेंशन की थी मिडिल एज की, जिसने डिफाइन किया था एज ऑफ एनलाइटमेंट और मॉडर्निटी इन हिस्ट्री। इसे रेनेसा कहा गया था। रिपीट करता हूँ, खैर एक्सप्लेन बाद में करेंगे। What do you understand by the term Renaissance? Examine Spencer Prothomelian as an example of both Renaissance writing as a nepital song. हाँ, एपिथेमेलियन को रेनेसा राइटिंग कहा गया, as well as we saw that this is a nepital song too. So we guys need to understand कि यार ये रेनेसा भी है और नेपिटल सॉन्ग भी है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चीज़ को समझना है, एंड दिस इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो रिया स्टूडेंट थी शायद, रिया ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर ब्लॉक वाइज क्वेश्चन बताएंगे। ब्लॉक वाइज क्वेश्चन हो गया बच्चा, तो देखो मैं स्पेंसर पे आ चुका हूँ, थोड़ा आगे चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रोल ऑफ कोर्ट इन शेपिंग द इंग्लिश रेनेसा लिटरेचर। ये रेनेसा को याद रखना है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलने वाला है। वन क्वेश्चन डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिलेटेड रेनेसा। कहता व्हाट वाज द रोल ऑफ द कोर्ट इन शेपिंग द इंग्लिश रेनेसा लिटरेचर। नाउ ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 and 5. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म रेनेसा मीन। अगेन आइडेंटिफाई सम ऑफ द की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ रेनेसा इन यूरोप। जो कुछ की फैक्टर्स हैं वो आपको बताने होंगे, यू हैज नीड टू मेंशन दैट एंड देन रूल आउट द बेसिक्स। So these are the things, and guys, really, if anybody have any problem, I'm here live for all of you. तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि उसका सोल्यूशन यही मिल जाए। बाद में लेटर हम वो कहेंगे सर थे हम लाइव पूछ सकते थे, पूछा नहीं, तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के लिए आपके पास लाइव सेशन है गाइस, सो यू कैन आस्क द लाइव क्वेश्चंस हियर। दिस आर द क्वेश्चन दैट आई एम हैविंग। सिर्फ 2 बच्चों ने क्वेश्चन पूछे तो मैंने बता दिए। जंप टू अदर पार्ट, और इसके बीच अगर किसी को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करे गलती से। कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एपिथेमेलियन प्रोथोमेलियन एज अ वेडिंग सॉन्ग्स। और इसे नेपिटल सॉन्ग भी कह सकते हैं। आई रिपीट, कंपेयर एपिथेमेलियन प्रोथोमेलियन एज अ वेडिंग सॉन्ग, जिसे आप नेपिटल सॉन्ग्स भी कहते हो। तो दोनों के दोनों आपको क्लियर होना चाहिए, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करना है, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलो क्या होंगे, चीज़ें आपको बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर होनी चाहिए। Yes, if you go through by these terms, तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 8 we are having, identify some of the primary influence and the main literary sources of the found in Milton's early poetic works। मिल्टन के early poetic works में जो मिलता है, identify some of the primary influence and the main literary sources to be found in John Milton's poetic works। Next one, what were some of the culture and political factors that led to make Milton the first major English epic poet? First major English epic poet। ये हो गया मिल्टन के क्वेश्चन। थोड़ा सा स्किप कर दिया मैंने, क्या मेटाफिजिक्स वाले मिल्टन पे आ गया। अब मैं मेटाफिजिक्स पे वापस आता हूँ। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, was Dryden, I repeat, was Dryden justified in attacking the metaphysical poets? क्या justify करता है? Was Dryden justified in attacking the metaphysical poets? Justify your substance with the work of the dawn। Next question, come up to the block number न्यू क्लासिकल, ब्लॉक नंबर 5। फर्स्ट 4 ब्लॉक्स हम कर चुके हैं। कम टू ब्लॉक 5, ऐसे टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कैन मैकफ्लेक्नो बी कॉल्ड एज अ कॉमिक फैंटेसी? यस आई कैन से, ह्यूमर है, काफी स्टाइल है, स्टाइल तो डेफिनेटली हीरो क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा है, मजाक बना रहा है उसका। तो कैन मैकफ्लेक्नो बी कॉल्ड एज अ कॉमिक फैंटेसी? कमेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू गाइस नीड टू डू। नेक्स्ट वन, वुड यू कंसिडर सटायर टू बी ग्रेट पोएट्री? Satire means Maclechno, the work of John Dryden. Would you consider satire to be a great
poetry. Discuss the reference of MEG. No, you guys need to give the answer. Next one. What do you now? What? Why do you think the become popular in the age of Dryden and Pope? Why do you think satire become popular in the age of Dryden and Pope? क्यों popular हो गया? In the age of Dryden and Pope. तो we guys need to give the answer that. क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ें कैसे फॉलो होंगी, वो सब आपको दिमाग में रहना चाहिए. नेक्स्ट वन. डिस्कस द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंट सॉन्ग्स एक्सपीरियंस एज कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सॉल. ये नया क्वेश्चन है गाइस जो इस बार एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस नीड टू डू दिस. डिस्कस द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एज कॉन्ट्रेरी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सॉल. कॉन्ट्रेरी स्टेट्स हैं, कैसे करना है, करने का तरीका होगा. इन बिटवीन आप लोगों को बता दूं, कल 1 बजे के आसपास अराउंड 1 आई विल लाइव फॉर RTCs reference to contest. Remember guys, tomorrow by 1 noon I'll be live for RTCs reference to contest. So be ready guys, to you confirm वहाँ वो डिस्कस होंगी. Come on, next question. Examine any one poem by Donne. I'll repeat. Examine any one poem by Donne or Herbert or Marlowe for the metaphysical poetry. आपको डिफाइन करनी है क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हो, चीज़ें कैसे कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट कौन से होंगे, कौन कौन सी चीज़ें बिगनिंग से लास्ट तक आपको आनी चाहिए, एंड हाउ यू गोइंग टू सर्व. चीज़ें कैसे सर्व करते हो, चीज़ों कैसे क्लियर करते हो, एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए. यस, इफ़ यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट, तो चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी, चीज़ें बदलेंगी आपके हिसाब से, आप उन आंसर्स को लिख भी पाओगे. दिस रियली इम्पॉर्टेंट. यू गाइस नीड टू डू. क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, चीज़ें कैसे बदलेंगी, ये सब आपको आना चाहिए. This what you guys need to do. Next question, the number 16. I hope 15 questions complete है. What is conceit? I'll repeat. What is conceit? Conceit क्या होता है, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी. कहता है give an example of conceit from don't poetry and explain it. Conceit is fanciful metaphor. Conceit बोलते हैं fanciful metaphor को, a metaphor that is fanciful, especially a highly elaborate and extended metaphor in which unlikely a fact fitting or stain the comparison made between the two things. दो चीज़ों में कंपेरिजन किया था, जैसे कि आप फेमस वर्क ऑफ डॉन अ वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग को हाईलाइट करोगे. यस, द फेमस वर्क ऑफ जॉन डॉन अ वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जहाँ पे पोइट्री में लवर के कंपेयर पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर किया गया, उसको हाईलाइट किया. दैट्स कॉन्सीट. ये पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा गाइस. नेक्स्ट वन, थोड़ा सा लीक से हट क्वेश्चन, इस पर मैंने ऐड किया वाला. कहता व्हाट लुक रहा अर्ली इमिटेशंस. व्हाट अर्ली इमिटेशन रोमांटिज्म डू यू फाइंड इट रॉबर्ट बर्न्स. रॉबर्ट बर्न्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, आपने कभी बोला भी रॉबर्ट बर्न्स पढ़ना है. एक ना लीक से हट के 2 क्वेश्चन दिए मैंने इस बार, लीक से हट के, क्योंकि पिछले ना 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि लीक से हट के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं 2-3, तो मैं कहा चलो इसको ऐड ऑन कर लेते. यस, रॉबर्ट बर्न्स कहता है व्हाट अर्ली इमिटेशन ऑफ द रोमांटिज्म डू यू फाइंड रॉबर्ट बर्न्स. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here we are the next question. Comment on the uniqueness of the Byron as Shelley poets. Yeah, that is really important. Comment on the uniqueness of Byron and Shelley as poets. Byron और Shelley दोनों को as a poets, वो भी यूनिक पोइट्स में डिफाइन करना है. ये हमें ऑन टिप होना चाहिए, क्या है, कैसे है, करने का तरीका क्या होगा, चीज़ें कैसे फॉलोअप करोगे. नेक्स्ट वन, एग्जामिन सम ऑफ द पर्सोनिफिकेशन मिल्टन एम्प्लॉय इन लिसिडस. सब मिल्टन ने यहाँ पर्सोनिफिकेशन एम्प्लॉयड किए, वो हमें आना चाहिए, क्या है उसके बहुत सकते हैं. प्रतीक्षा सर, आई हैवंट स्टडीड येट, कैन आई टेल मी द 2-3 क्वेश्चन सो दैट आई कैन क्लियर द एग्जाम. सो प्रतीक्षा, डू वन थिंग, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है. अगर आप कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेते हो आप आराम से चीज़ें कर लोगे. ठीक है, व्हाट आई रियली वांट यू गाइस नीड टू डू, आपको सिर्फ बेसिक्स फॉलो करने हैं. यस, यू जस्ट नीड टू फॉलो द बेसिक. अगर आप बेसिक फॉलो कर ले तो चीज़ें बड़ा आराम से हो जाती, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है. अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे हैं, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप क्या करना होगा, वो देखना पड़ेगा. तो रिपीट करता हूँ, यहाँ कहता है आई हैव स्टडी फॉर यू द टाइम द 2-3 क्वेश्चंस और आई क्लियर द एग्जाम. सो प्रतीक्षा, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बच्चा है, इनको फॉलोअप कर लियो. इनमें से तो 2-3-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे. अगर वो ऐसे टाइप क्वेश्चन तो 5 के 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे. डू दीज क्वेश्चन, ये फर्स्ट प्योरिटी बेसिस पे करना है इनको. कम नेक्स्ट वन, कह रहा है एग्जामिन सम ऑफ द पर्सोनिफिकेशन मिल्टन एम्प्लॉय इन लिसिडस. वुड यू से दैट सेंस ऑफ पोएट्री.
नेक्स्ट, डिस्कस प्रील्यूड एज द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. प्रील्यूड, द ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड. इस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कह सकते हैं. उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करने का तरीका क्या. सो व्हाट यू नीड टू राइट द क्रिटिक ऑफ द पोएट. आई एम गोइंग टू कम ऑन दिस क्वेश्चन. रिया, डोंट वरी, don't leave the class, be in the stay there. I'll definitely clear the answer of each and every question. मैंने बोला जो बच्चे बेचारे स्किप करते जा रहे हैं, कांट हेल्प इट, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ सारे आंसर भी देने वाला हूँ. मैं भी क्लास छोटी नहीं होने वाली है, चीज़ों को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो फिर आप क्रिटिक बताऊंगा. मैंने आंसर में ऐड किए 2 क्वेश्चन, जिसमें आपका पेपर में क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पोएट और पोएट्री के एप्रिशिएशन, क्रिटिकल एप्रिशिएशन आएगा पेपर में. एंड आई टेल यू हाउ टू राइट ऑन दिस. Question number 20, discuss prelude as an autobiographical poem. Next, we are having how are the magic and symbolism related in Yeats poetry. Yeats related एक क्वेश्चन 100% पेपर में होगा इस बार. दोबारा बोल रहा हूँ, Yeats related क्वेश्चन पेपर में होगा ही होगा. तो you guys need to do कि करना कैसे, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी. कहता हाउ आर द मैजिक सिम्बलिज्म रिलेटिंग इन Yeats पोएट्री. मैजिक सिम्बलिज्म कैसे Yeats की पोएट्री में वो डिफाइन करना हमें. We guys need to understand. Next, how does W.B. Yeats make use of history in his poems? Sir, history को define किया उसने यार ईस्टर 1960 लो. दिस रियली इंपॉर्टेंट वन, जहाँ उसने हाईलाइट किया पूरा. उस चीज़ को क्लियर करोगे, चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी. Next, comment on Yeats' now poetic use of his ambivalent attitude of the Eastern rebellion in Eastern 1916. Eastern 1960 के अंदर उसने बताया वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए. एंड देन वी हैव द अदर क्वेश्चन. सर ये क्वेश्चन आया है रिया का. सर व्हाट डू यू नीड टू राइट क्रिटिक. हो गया बच्चा, आंसर बता चुका हूँ. नाउ प्रभा किशोरी. सर ट्वाइस आई फेल्ड, हेल्प मी प्लीज, गेट मी द पास दिस मार्क्स. तो प्रभा कुछ नहीं करना बच्चा, जस्ट स्टे विद द बेसिक क्वेश्चन जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, इनको फॉलो करो. बी लाइव टुमारो एट 1, आई विल बी देयर फॉर योर आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट कैसे करने. क्योंकि पेपर में आरटीसी कंफर्म है, फर्स्ट क्वेश्चन तो होगी. अगर सारी आरटीसी होती है फिर तो लॉटरी लग गई, लेकिन अगर सारी आरटीसी नहीं होती तो भी तो फर्स्ट क्वेश्चन आरटीसी होगा. उसके बाद सिर्फ इन्हें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बताए हैं. ये क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चन अगर आप फॉलो कर ले तो इनमें से पक्का क्वेश्चन फंसेंगे आपके पेपर में. डेफिनेटली यू गोइंग टू हैव द क्वेश्चन फ्रॉम दीज क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. सो फिंगर क्रॉस एंड वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड. आई ऑलवेज टेल डू वर्क स्मार्ट. हार्ड तो कई हैं जो कहते हैं सर बेवकूफ़ बना दिया, कांट हेल्प इट. ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं, लेकिन आई कांट हेल्प द आइडियोलॉजी ऑफ समबडी. सी आई कैन नॉट चेंज द आइडियोलॉजी समवन. इफ समबडी थिंक डिफरेंटली तो इट्स ये दे हेड. आई कांट हेल्प. नेक्स्ट वन, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग is the next question. Here we have, what do you think the Yeats contribute to modern poetry. What do you think is Yeats contribution to the modern poetry. Yeats का contribution क्या है modern poetry में, वो डिफाइन करना है. नेक्स्ट, हु वर प्री रेफ्लेटाइज. ये क्वेश्चन आएगा सर, लास्ट टाइम भी आया था, इस टाइम भी आने की पूरी उम्मीद है. हु वर प्री रेफ्लेटाइज क्रिटिक अप्रिशिएट एनी वन ऑफ द पोएम ऑफ द एज मूवमेंट एंड हाईलाइट द कैरेक्टर्स ऑफ द मूवमेंट. प्री रेफ्लेट हाईलाइट करता है विक्टोरियन इरा को. यस, ये वो आर्टिस्ट विक्टोरियन इरा को बिलोंग करते हैं. दे बिलीव दैट द सिमिलैरिटी इन रियल वर्ल्ड इज पॉसिबल. हाँ, उनको लगता है कि आर्ट में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है. थिंक ऑफ दिस लाइक दिस. If you painted the park you painted should be in a park and you see it. अगर एक पार्क को पेंट करते हो, पार्क की तरह पार्क होना चाहिए जो आप पेंट कर रहे हो. इट मीन्स द पेंट ऑफ द ग्रास ब्लू एंड ऑल दैट वाजंट ग्रीन. सो जैसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए. आप उसे बदल नहीं सकते. यू कैन चेंज द थिंग्स. मतलब ग्रीन ग्रास को येलो नहीं कर सकते, डेफिनेटली स्काई को ब्लू की जगह रेड नहीं कर सकते. तो जो है उसको वैसे शो करो. You guys need to do this. आपने कहा सर इसमें ब्लेस्ड डेमोजल का एग्जाम्पल दे सकते हैं. I can give the example of a lover. Yes, I can give the example of Fra Lippo. I can give the example of the Ballad of Raging Gale. See this, I can give the example of these. ये प्री रेफ्लेक्ट मूवमेंट है, उसको हाईलाइट करता है. कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, चॉइस एंटायरली योर्स. जंप अप नेक्स्ट वन. कुछ चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा क्लियर करेंगे. What was the Reformation? Next question is, what was Reformation? What relations can identify and trace between Renaissance and Reformation? Reformation क्या है और ऐसे कौन से इशू मिलते हैं जो हमें इनमें डिफरेंस को क्रिएट करते हैं Renaissance एंड Reformation में. देखो, Reformation और Renaissance मैंने बिगनिंग में 4 क्वेश्चन बोले Renaissance से, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पेपर में होगा. अब Reformation और Renaissance दोनों के दोनों ही आ जाते हैं. बीच में पारुल आती है, सर रिपीट कीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन.
बच्चा मुझे क्वेश्चन बता कौन सा नंबर था, ठीक है 26 मैंने बोला, अगर 24, 23, 21 है कोई तो मुझे बता, प्लीज टेल मी द नेम नंबर ऑफ द क्वेश्चन, या आपको आइडिया हो कि सर इस क्वेश्चन से पहले बोला था वो क्वेश्चन बताओ, डेफिनेटली रिपीट द क्वेश्चन। सारे रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप मुझे बताओ सर इस वाले से पहले था तो मैं डेफिनेटली रिपीट कर दूंगा। तो ये हो गया व्हाट वाज रिफॉर्मेशन, व्हाट रिलेशंस आर रिपीट। नाउ कहता है कैन यू आइडेंटिफाई द ट्रेस बिटवीन द रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, क्या है, कैसे कनेक्ट करते हो, चीज़ें कैसे क्लियर करते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, assess the contribution of the poets of the First World War to modern British poetry. I'm repeating the question. Assess the contribution of the poets of the First World War to modern British poetry. यार कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइन करना है किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मॉडर्न ब्रिटिश पोएट्री। सब बात कर रहा मैं TSE लेट की। सो उसने वेस्ट लैंड लिखा था, वेस्ट लैंड को डिफाइन करना पूरा है। आपने कहा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, हाउ टू फॉलो दीज, सब के सब यहाँ मेंशन होते हैं। यस वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि सब के सब मेंशन है, चीज़ें कैसे क्लियर करनी है, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप क्या होगा, सब देखेंगे। नेक्स्ट वन, write a note on Dylan Thomas user imaginary with a reference of poem you have studied. So Dylan Thomas, yes, Dylan Thomas. I cannot say that this is a poetry that I am going to do or not, करने का तरीका क्या, और चीज़ें कैसे क्लियर करनी है, ये सब आपको आना चाहिए। Next one, it's one of my favorite. Yes, one of my favorite. How does confessional poetry, सर सिल्विया प्लैथ की बात कर रहे हैं, how does confessional poetry differ from the kind of poetry that was written in early decades of 20th century? कितनी अलग है, डैडी की रेफरेंस दे सकते यार, you can give the reference daddy, daddy I killed you that died before I had time, marble having a bag full of god ghostly statue with one grey boy big as a fisco seal। ये लाइंस कुछ अगर याद होंगी तो सीरियसली काम करेंगे आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल होंगी। द वे यू ट्रीट योर आंसर। अब आते हैं मेजर क्वेश्चन जो दो पक्का मिलेंगे इस बार आपको, ट्विस्ट और टर्न से ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपने फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिक ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, जिनमें सबसे पहले लूंगा जेफरी चौसर को, नंबर 2 स्पेंसर, so we can have the Geoffrey Chaucer, we have the Spencer, then we have the other poet Herbert, Andrew Marvell, Alexander Pope, we have Robert Browning, yes, William Blake, or we can add सिल्विया प्लैथ और फिलिप लार्किन। ये कुछ पोइट्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। यस कुछ पोइट्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। क्वेश्चन को क्लियर करेंगे दोबारा, रिपीट द क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन इस बार पेपर में एक्सपेक्ट है गाइस, सो बी रेडी फॉर दिस। फॉलोइंग पोइट हैं जैसे स्पेंस हो गया, जेफरी चॉसर हो गया, वी हैव जॉन डॉन फॉर मेटाफिजिकल पोइट्री डोमिनेंट है, वी हैव द अदर पोइट दैट इज फ्रॉम द मिल्टन, जॉन मिल्टन हो सकता है, डेफिनेटली वी कैन होल्ड जॉन ड्राइडन द ग्रेट क्रिटिक, सीरीज क्रिटिक है बहुत बड़ा, उसको क्लियर कर सकते हैं, उस पर एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकता है, वी गाइस नीड टू गिव द आंसर दैट वन। एंड देन वी जंप अप टू नेक्स्ट वन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, बहुत डोमिनेंट विक्टोरियन पोइट्स में, वी हैव एस टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, कुछ पॉइंट्स हैं डोमिनेंट पॉइंट है। अगर आपने टेक्स्ट को पढ़ा है, इफ यू हैव द नोट्स, तो नोट्स को आपने पढ़ा है, डिटेल नोट्स में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको क्लियर एग्जाम्पल देता हूँ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो क्या लिखते हैं, उनकी पोइट्री क्या है, वो सब आप मेंशन कर सकते हो। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, जो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन क्या होगा, सर ये पोइट्स के बारे में नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट पोइट बट दीज आर अबाउट पोइट्री। क्रिटिकली इवेल्युएट एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉम्स। सर इसमें सोडेलो, सर सोडेलो तो हमने पढ़ी नहीं, हमने जस्ट लीव द सोडेलो बिकॉज द स्टोरी ऑफ द रियली द ग्रेट सिंगर हु वाज देयर थी, उसने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया, क्रिटिक हाईलाइट किया। अब कई बच्चे डर जाएंगे सर सोडेलो तो मैंने पढ़ी, घबराओ मत, 4-5 आएंगे उनमें से एक करनी है आपको। अगर आपने एक नहीं पढ़ी या 2 नहीं पढ़ी तो घबरा के लो, 4 पोइट्रीज होंगी यार, 4 में से कोई एक तो आपको कन्फर्म आती होगी, तो व्हाट्स रॉन्ग। ये तो एग्जाम्पल था सोडेलो। नंबर 2 पॉफिया लवर, सीरियसली पॉफिया लवर सर बहुत डोमिनेंट है। Number 3, I remember by Philip Larkin, The Blessed Damsel. So this is really important. Yes, I need to know The Blessed Damsel. Sir, Blessed Damsel तो ऑन टिप होनी चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, हेल्प करती है मुझे। लेडी लेजरस, यस लेडी लेजरस, सिल्वर प्लैथ, Poem in October, and the next one we have the Epistle to Dr. Arbuthnot, The Ballad of Reading Jail. So these are the poetries. Now I'm getting confidence. Yes, now I'm getting the confidence. Yes, I can do. Yes, now I can do. मुझे लग रहा है कि हाँ इनमें से मुझे कोई ना कोई पोइट्री तो आती है। सर फ्लाली पोलिपी, और वी कैन हैव द रियली
द गार्डन, यस द फ्ली, these short of poetry, मैक नो, कोई भी पोइट्री आ सकती है, एनी वन ऑफ दीज. सो वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि किस पोइट्री को करना है, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप क्या होंगे, चीज़ें कैसे बदलेंगी, एक एक पॉइंट आप लोगों को आना चाहिए. यस, एवरी पॉइंट, every point. When you know each and every point, you know how to get the answer. कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, करने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से कैसे क्लियर करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. यस, इफ़ यू गो विद दिस, अगर आप फ्लो के साथ जाते हो तो चीज़ें आपको बदलेंगी, चीज़ें आपके हिसाब से काम करेंगी. एंड दिस व्हाट आई रियली वांट कि आप लोगों को करनी ही करनी है. तो जब हम चीज़ों को करना शुरू करते हैं तो हमें चीज़ें आती हैं. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कहेंगे सर आप एक ग्लिम्स दो यहाँ पे कि हम आंसर्स को कैसे फ्रेम करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू राइट माई आंसर, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ माई आंसर्स. मतलब सर मेरे को आंसर तो बेस्ट मिलने चाहिए ना, मुझे पता हो जी क्या करना है, करने का तरीका क्या, चीज़ें कैसे बदलेंगी, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को मुझे क्लियर करके चलना है. यस, काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. हाँ, आपने कहा सर पॉइंट्स हैं मुझे क्लियर करने हैं, मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड देन आई नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट. इसको दोबारा क्लियर करते हैं, ठीक है जी. अब यहाँ पे पारुल का मैसेज आया, सर प्री रेफ्लाइट रिपीट कीजिए. प्री रेफ्लाइट बच्चा बिल्कुल डिफरेंट करता हूँ मैं. अब आपने कहा प्री रेफ्लाइट क्या था, प्री रेफ्लाइट मूवमेंट क्या थी, उसको क्लियर करते हैं. प्री रेफ्लाइट क्वेश्चन पेपर में आएगा, कंफर्म चांसेस है, ये कुछ नहीं है विक्टोरियन इरा के बारे में. प्री रेफ्लाइट मूवमेंट वॉज द एरा ऑफ विक्टोरियन पीरियड. अब विक्टोरियन पीरियड से क्या था, उसमें क्या था, कौन कौन से पोइट थे, उनके बारे में बताना होगा. यस, वी गाइस नीड टू मेंशन. The question is who were the pre-Raphaelites? Pre-Raphaelites कौन थे? First question, who were the pre-Raphaelites? Critically appreciate any one of the poem of the age movement and highlight the characters of the point. इसको प्लीज दोबारा लिखना. Pre-Raphaelites are the era of the Victorian poets. Yes, it's the era of the Victorian poets. Those who believe that there should be a similarity to the real world as possible. जितना हो पाए आप रियल वर्ड से सिमिलैरिटी करोगे. जैसे सपोज इफ यू आर रियली पेंटिंग अ पार्क, सो एवरीथिंग लुक्स लाइक एन पार्क, अ रियल पार्क. देयर शुड नॉट बी एन समथिंग दैट इज गोज बियॉन्ड इमेजिनरी. सीरियसली कि इमेजिनरी से बाहर हो गया, आपने एक अलग ही दुनिया बना दी, वो पॉसिबल नहीं है. यू गाइस बी वेरी रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होना चाहिए चीज़ें. जब आप उसका एग्जाम्पल दो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो. अब आपने प्री रेफ्लाइट को क्लियर किया तो यहाँ पे लाइट जीसस लाइफ उसको हाईलाइट किया गया, बेनिफिशियल किया. प्री रेफ्लाइट वांटेड टू पेंट व्हाट दे न्यू, जो जानते हैं सिर्फ वही रिपीट करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं. ब्रदरहुड को हाईलाइट करता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है. यू हैव द ग्रेट पोएट्स थ्रू रॉबर्ट ब्राउनिंग, डी जी रस्टी, क्रिस्टेनिया रस्टी वाज देयर. ठीक है, अब आपने कैसे इनको क्लियर करना है, मुझे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. यस, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लेस्ड डेमोज. ब्लेस्ड डेमोज तो पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ उसने पूरा उसको हाईलाइट किया, उसकी समरी को डिफाइन कर दो. अगर आप क्रिटिकल अप्रिशिएट नहीं कर सकते उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी समराइज को विद द रिलेशन टू सर्टन यंग थॉट प्रोसेस उसको ऐड ऑन कर दो आंसर में, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं. क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें आना चाहिए. क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या, चीज़ें कैसे हाईलाइट होती हैं, वो सारी चीज़ें बिगनिंग से लास्ट अगर आप लोग क्लियर करोगे देन यू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट. जंप अप टू द नेक्स्ट मूवमेंट. सीरीज दिस रियली इंपॉर्टेंट सर, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, चीज़ें कैसे बदलती हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और मैं उनको और कितने अच्छे से काम कर सकता हूँ. ये सारी चीज़ें यस फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट यू मस्ट नो. आपके पॉइंट्स क्लियर हैं, आपको चीज़ें पता है, आंसर कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या है. तो ये तो गए क्वेश्चंस. यस सर, व्हाट आर द आंसर, हाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर. सर आंसर भी लिखने आना चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए. आई एम हियर फॉर दिस कि आप आंसर कैसे लिखते हो, लिखने का तरीका क्या होगा, फॉलोअप क्या होंगे, उसमें हमेशा करते हैं. एक बार देख लेते हैं बच्चों ने कोई और क्वेश्चन किया, अगर नहीं किया तो ठीक है, डेफिनेटली विल गो टू द अदर पार्ट्स. गाइस प्लीज राइट डाउन योर कमेंट्स. अगर आपको चाहिए कि आर्टिस्ट से यहीं डिस्कस करूँ मैं, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी यहीं डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा. नहीं तो आपको कल का टाइम दूंगा डेफिनेटली. अगर अब भी चाहते हो कि डिस्कशन करना है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आएँ. कमेंट बॉक्स में आओ तो डेफिनेटली मुझे मज़ा आएगा कि हाँ ये चीज़ें कर रहे हैं. Tricky जनरल सर जी मेरा एग्जाम है, नीड गाइडेंस, so I'm here that now all the best dear. प्रतीक्षा चावला सर, I haven't studied yet and tell me the 2-3 बच्चा just do follow the questions. मैंने बोला है, रिया को मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, प्रभ किशोर को मैं बोल चुका हूँ क्या फॉलो करना है. पारुल ऑलरेडी यू गेट योर पॉइंट नाउ क्लियर. नाउ पारुल का थैंक यू आ चुका है, तो विश यू ऑल द बेस्ट डियर. डिजी एडिट्स सर भूपेंद्र जोगी एक्सप्लेन कर दो. भूपेंद्र जोगी बच्चा, ये भूपेंद्र जोगी क्या है प्लीज़ मुझे बता, मुझे खुद को नहीं पता भूपेंद्र जोगी कौन है.
अगर भूपेंद्र जोगी या कुछ अलग है या मेरे कोर्स में, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, नीड नॉट टू वरी, बट लेट मी नो हु इज, आई रियली डोंट हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस। तो आते हैं मेजर पार्ट के ऊपर। यस, द मेजर पार्ट दैट इज रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाट अबाउट द रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट? ये रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट क्या होता है? अभी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में सर अगर मेरे पास कुछ आ जाता है, हाउ वुड आई एम गोइंग टू राइट डाउन आंसर, उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करता हूँ, करने का तरीका क्या होता है, चीज़ें मेरे हिसाब से कितना काम करती हैं, ये सब मुझे पता होना चाहिए। यस, आई मस्ट नो ऑल दिस। अगर ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर हैं, इफ आई नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट, तो कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, मैं उनको कर पाऊँगा, करने का तरीका पता चल जाएगा। ये चीज़ें आपको भी आनी चाहिए एंड यू गाइस नीड टू नो। टेक एन एग्जाम्पल। सर मैं कुछ लाइंस पढ़ता हूँ, प्लीज़ इसको सुनेंगे, उसके बाद मुझे बताना कि यार ये कहाँ से, किसने लाइन लिखी है, आंसर कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, एंड फॉलोअप क्या होगा। द क्वेश्चन नॉट द क्वेश्चन हियर, आई होप ऑल आर लिसनिंग एंड राइटिंग दिस। बट हेल दो गॉडेसेस सेज एंड हॉली, but hail thou goddesses, sage and holy, hail divinest Melkoni, whose sanity vises is too bright to hit the sense of human sight, and therefore to our weaker view are led with black, I repeat, are led with black state wisdom hue. अभी मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, अभी लाइन सेशन चल रहा था मेरा ऑनलाइन, उसके अंदर उसने बोला सर मैंने एक आर्टिस्ट ही पढ़ी, मुझे लगा कि सर वहाँ पे एक वर्ड था दैट्स मेलकॉनी। सर मुझे पढ़ते ना ऐसा लगा दैट दिस मस्ट बी फ्रॉम एल एलिग्रो, क्योंकि सर फर्स्ट पैराग्राफ में मेलकॉनी वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहा मेलकॉनी तो यार एल पेंसेरो में भी। अब हाउ यू गोइंग टू डिफाइन दिस कि ये एल पेंसेरो है, एल एलिग्रो है, डेफिनेटली इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। उसके एक छोटी सी आपको हिंट देता हूँ, 2 से 3 बार ना, जस्ट 2 to 3 बार टेक्स्ट को रीड करो, आप देखोगे एल एल में सिर्फ बिगनिंग में मेंशन किया गया, उसके बाद कुछ मेंशन नहीं है, तो आपके ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। बीच में स्मृति देवगन का मैसेज आया हुआ है, सर प्लीज सजेस्ट समथिंग, आई हैव नॉट स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर MEG01। स्मृति कुछ नहीं करना बचा था कि मैं कोई जादू नहीं सिखाता, ना मेरे पास कोई मैजिक स्टिक है, बट येस आई कैन डू वन थिंग। आप क्या करो, आपके पास ये जो क्वेश्चन दिए मैंने, ये ऑन टिप कर लेने। यस, ये क्वेश्चन ऑन टिप करने, हो सके तो इनके आंसर्स भी ऑन टिप कर ले। यू कैन हैव द नोट्स, उसके नंबर दिया हुआ, नोट्स फ्री नहीं होते यार, उसके पे करना पड़ता है आप लोगों को। मैंने नए क्वेश्चन पूरे तैयार कर दिए हैं, क्वेश्चन आप ले सकते हो, इसको फॉलोअप करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर पेपर ऐसे टाइप आता है। अगर पेपर पूरा आर्टिस्ट ही आता है तो क्लास में बने रहो, मैं आंसर बता रहा हूँ कैसे करने, सारी चीज़ें बताऊँगा। अर्नव, दिस इज माई लास्ट ईयर, इफ एनी एग्जाम नॉट क्लियर देन इग्नो गिव वन मोर चांस। अर्नव सॉरी टू से, बट 5 साल अगर पूरे हो गए तो इग्नो कोई चांस नहीं देगा। किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको स्पेशल चांस मिल जाएगा। आई रिपीट, किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको स्पेशल चांस मिल जाएगा। उसके लिए आपको रीजनल सेंटर थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन बेस्ट विशेष है मेरे आपके साथ कि आप इसी बार क्लियर कर दो। डोंट थिंक हियर और देयर, जस्ट लुक एट योर पेपर एंड क्लियर दिस टाइम ओनली। विश ऑल द बेस्ट। नाउ कम टू द But hail thou goddesses sage and holy, hail divinest Melkoni, whose sanity vices is too bright to hit the sense of human sight, and therefore to our weaker view are led with black state wisdom hue. I repeat the reference. The above line has been taken from John Milton's work El Pensero. I repeat, the above work has been taken from John Milton's work El Pensero. I hope you are writing this. I hope you guys are writing this, guys. Please make sure. Now, the above extract has been taken from the famous poet John Milton's works El Pensaro. Now contest, it was presented as a companion piece. Yes, I repeat, it was presented as a companion piece of El Allegro Vision of Poetic Myth. Companion work था उसका, उसको बताया the speaker of this silence or displays vain deluding. Yes, vain deluding from the mind in 10 lines prelude before invoking divinest Melkoni to inspire the future verses. तो सर ये हो गया contest. Reference contest. Now come to explanation. This is really important. The speaker orders vain deludes joys to leave him. He then welcomes Melkoni as a goddess is so bright that the humans cannot see her. Instead, they perceive her and appear to black and hue the wisdom. She is the daughter of Saturn, a solitary god.
एंड द वेस्ट आर द गॉडेसेस। अब सर बच्चे परेशान हो गए, सर हम कैसे करेंगे सर, हाउ आई एम गोइंग टू राइट इन द एक्सप्लेनेशन, आई डोंट हैव एन आइडिया ऑफ द लाइन्स दैट वाज बीइंग गिवन हियर एंड व्हाट डज दे मीन। सो नी नॉट वरी, समझ आती पोइट का कर्स, पता पोइट का जो पोइट में बता रहा है, पोइट्री जो बता रही है वो लिख दो यहाँ, वो भी चलेगा, ये तो कर सकते हो। दो चीज़ें सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट जो ठीक करनी है आपको, फर्स्ट रेफरेंस, दूसरा कॉन्टेस्ट। एक्सप्लेनेशन में आप क्या कर दो, आप सिर्फ प्लस लिख दो, वो भी चलेगा। बीच में मैसेज है समृद्धि का, शुड आई डू समरी फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पॉम्स, वुड बी इनफ। बच्चा मैंने तेरे को बोला कॉन्सेप्ट को क्लियर, समरी से कुछ नहीं होता, समरी नहीं करनी, क्वेश्चन आंसर आपके पास होंगे, आप उनको क्लियर कर सकते हो, वो चीज़ हेल्प करेंगे। स्मृति डोगरा, देवगन सॉरी बिकॉज आई हैव ओनली 2 days टू प्रिपेयर फॉर इट। ये जाके लेट हो तो अभी तो फिलहाल ये कर सकते हैं। मैंने बोला आप क्वेश्चन आंसर के नोट्स मैं दे दूंगा, आप उसको फॉलो कर लेना, दैट्स मोर देन इनफ। अगर वही प्रिपेयर करना तो वो कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। आई शेयर माई नंबर ओवर द पेपर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ, दैट इज 7291161375। ये मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिए, ठीक है, इस पर व्हाट्सअप करोगे, आई विल टेल यू द डिटेल्स आफ्टर द क्लास, यू लेफ्ट इन व्हाट्सअप मी, आई विल रिप्लाई टू यू, क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, उसको फॉलोअप करेंगे। एंड डू फॉलो माई इंस्टा ID @classy Rahul, so that you can have the questions on my Insta ID. I'm going to post tomorrow. But tomorrow I'll post the questions, the respective questions, essay type questions on my Insta ID. Most probably by tonight. तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि हाँ यार ये करना है, इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका, सारी चीज़ें आ जाएंगी। Come up to the next phase. That is, sir, how would I'm going to write on the answers? Answers here. एक और क्वेश्चन बताता हूँ, एक और लेते हैं RTC. My love is now awake out of her dreams. My love is now awake out of her dreams, and her fairy eyes like stars and dimmed were. And her fairy eyes like stars and dimmed were, with dark some cloud now shoot they godly beams, more bright than Hapses his head, though clear. So this is really important. I need to know उसके कॉन्सेप्ट में, ग्रेविटी ऑफ मैथ, what are you teach is all about MEG 01, that is RTC's reference to contest. I hope you get this point, gravity of maths. My love is now awake out of a dream, and her fairy eyes like stars and dim were, with darksome cloud new shed thy godly beams, more bright than hospice his head doth rear. Now identify the line series. This is really important. Identify the lines of where this poem had been, these lines had been taken. So the reference, the upper line, has been taken from Epithalamion, the great work of Edmund Spenser. The lines had been taken from Epithalamion, the great work of Edmund Spenser. Contest. Now I need to go next. Contest. The poem is tribute composed by Edmund Spenser as the blessing of the Lady of R, Elizabeth Boyle, his second wife. Or the big day of their life, the lyrical travel through the couple's big day, from the lucky man's restless hours before first light to the late long periods of night, after husband and spouse have fulfilled their marriage. Yes, they're going to fulfill their marriage. Yes, the day for the union is day for the union, because now they are getting married and the courtship was been over. With this sense, तो उसको highlight करता है, उस point को बताता है that you guys have to do. ये हैं वो point जो आपको clear होने चाहिए beginning से last तक. The more you work on it, the more you'll definitely get it. आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं, चीज़ों कैसे क्लियर कर, तो ये RTC का रूल. व्हाट आर द रूल्स ऑफ RTC, मतलब सीरीज दिमाग में क्वेश्चन आता है सर रूल्स ऑफ RTC क्या हैं, कैसे करेंगे, मतलब RTC के रूल तो हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए RTC क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन से पॉइंट्स हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई RTCs इन ब्रिटिश पोइट्री. काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं सर, RTCs कैसे आइडेंटिफाई करनी है, हमें कौन सी चीज़ें क्लियर करनी होगी. तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज़ राइट ऑन दिस, इसके बाद नहीं दूंगा. बात करें चौसर की, जेफरी चौसर. सर स्पेलिंग्स देखो, पहला बताता हूँ, स्पेलिंग्स गलत होंगे, आपके हिसाब से गलत होंगे, उसके टाइम गलत नहीं थे वो, आज के हिसाब से गलत है. तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग्स पे ध्यान देना है. जेफरी चौसर की बात करें तो वी नीड टू लुक एट द स्पेलिंग्स. नंबर 2, रियलिस्टिक. ही वॉज वेरी मच रियलिस्टिक बिकॉज ही डू पोर्ट्रेट द कैरेक्टर्स एज पर द सोसाइटी. उस सोसाइटी के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रेट करता था.
He was a court poet. Yeah, he was a court poet. Court poet, those define the events as they were at that period. And everything in his writing is descriptive. Yes, everything in his writing is descriptive. तो आपको डिस्क्रिप्टिव तो होगा यार, डिस्क्रिप्टिव करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियर होती हैं, आप उसको समझ भी पाते हो. एंड दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू. आपके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे करते हो, करने का तरीका क्या होता है, चीज़ें कितनी ईजिली फॉलो कर लेते हो, ये सब आना चाहिए. यस, इफ़ यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट देन यू गेट टू नो चीज़ें क्या हैं, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, और बेस्ट वे टू गेट द आंसर्स. दिस व्हाट वी नीड टू. अगर आप लोग ये फॉलो कर ले तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नाउ आई वेट फॉर योर क्वेश्चंस. अगर क्वेश्चंस हैं तो ठीक है, नहीं तो मिलते हैं कल, चीज़ों को क्लियर करते हैं और ईजिली समझ पाएंगे, हमारे लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को और आइडेंटिफाई करना. एंड हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ यू. सी इज़ द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ यू. इस पर ध्यान देंगे. तो क्वेश्चन मैं शेयर कर चुका हूँ, जो क्वेश्चन आपको करने हैं फॉर एग्ज़ाम. आई होप ऑलरेडी सबको मिल गया क्वेश्चन, सबने क्वेश्चंस कर लिए. किसी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उसको फॉलो कर पाऊँ. नहीं तो कहते हैं टाटा बाय बाय साया ना रहो, क्योंकि कल मिलेंगे क्लास में. सीरियस आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, ताकि उसको क्लियर करें. सर कैन आई स्किप चौसर? नीड नॉट टू स्किप चौसर, जस्ट रीड जनरल प्लॉग एंड टेल. आई रिपीट, प्रीतम यस प्रीतम देख, सबसे ईजी है बच्चा. अगर चौसर को समझ ले, चौसर के स्पेलिंग्स को क्लियर कर ले, वो तो ईजी हो जाएगा. चौसर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, जनरल प्लॉग टू कैंटरबरी टेल को क्लियर कर ले. अब आप में से सीधा ब्लॉक वाइज पूछ सकते हो, सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि इस ब्लॉक में सिर्फ क्या पढ़ना है, मैं वो बता दूंगा कि उससे रिलेटेड आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. चौसर को स्किप मत करो. चौसर स्किप करना डेफिनेटली, अगर लास्ट 2 टाइम दे दो चौसर नहीं आया, लेकिन इसका नहीं चौसर नहीं आएगा. चौसर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चौथा इंपॉर्टेंट है. और हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं, करने का तरीका कहते हैं, हमें वो आना चाहिए. तो जनरल प्लॉग टू कैंटरबरी टेल ऑन टिप करो, चौथा में हेल्पफुल है बहुत. उसके बाद एनपीटी, नन प्रीस्ट टेल. यस, नन प्रीस्ट टेल, उसको क्लियर कर ले. अब मैं यही क्लास में बताता हूँ, जनरल प्लॉग टू कैंटरबरी टेल कुछ भी नहीं है. इट्स एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स सच एज द पिलग्रिमेजेस दोज मेंशन्ड बाय द चौसर और हैरी बेली. द होस्ट ने बताया, उसने कैरेक्टर्स बताया. उन सब कैरेक्टर्स को उसने बोला आप पहले प्रोलॉग बताओ, अपना इंट्रोडक्टरी बताओ, इंट्रोडक्शन दो अपनी. सब ने अपने इंट्रोडक्शन दी. वो इंट्रोडक्शन दी गई है हमें जनरल प्लॉग में, और कुछ नहीं. फिर उन सब की एक टेल्स है, वो टेल्स डिफाइन की गई, नथिंग मोर देन दैट. देन एनपीटी नन प्रीस्ट टेल, कहानी किसकी, वो मुर्गी की कहानी, चैंटिसलर को बोलते हैं. ठीक है, अपनी वाइफ को कहानी बताता है, उसके हिसाब से बताया गया, और कुछ भी नहीं था. बट आराम से चीज़ चल रही हैं. एंड वी हैज़ बीन कनेक्टेड विद यस, दिस इज समथिंग गोइंग ऑन एंड वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट. दिस व्हाट वी गाइस मस्ट डू. तो आई होप यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो, चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है और बड़े आराम से समझ भी आते हो. ये सब आपने करना है. कम नेक्स्ट फेज. सर नेक्स्ट फेज पे आते हैं. किसी और को कोई डाउट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए. तो आई एम बीन वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट मैसेजेस. अगर आप कमेंट करते हैं तो रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो फिर हम आगे जा सकते हैं. अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर हम कौन सा ब्लॉक छोड़ सकते हैं, हमें कौन सा ब्लॉक छोड़ देना चाहिए. अगर पेपर में आर्टिस्ट आ गई, कंप्लीट आर्टिस्ट आ गई, तो टफ हो जाएगा. इन दैट केस कोई भी ब्लॉक छोड़ना बहुत महंगा पड़ सकता है. इसलिए मैं कभी भी नहीं बोलता कि कोई ब्लॉक छोड़ो आप MEG1 के अंदर. तो MEG1 अगर आपने करना है अच्छे से, तो आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है. द मोर क्लियर यू आर विद कॉन्सेप्ट्स, definitely there are more chances to get maximum marks. And please do start writing practice. राइटिंग प्रैक्टिस, उस पर काम करो. जितना आप उस पर काम करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. द मोर यू वर्क ऑन इट, द मोर यू गेट फ्रॉम इट. दिस व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड. ये क्वेश्चंस हैं जो हमें ऑन टिप होने चाहिए. क्वेश्चन मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी. यस, शेयर द क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी आप सबके साथ कि ये क्वेश्चंस आपको ऑन टिप होने चाहिए. यस, दीज क्वेश्चंस. अगर ये क्वेश्चंस आप ऑन टिप कर लेते हो, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती आपको. आप हर चीज़ को ऑन टिप कर लोगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे. और ये सब आपको मिलेगा मेरे इंस्टा ID पे. ऊपर इंस्टा ID लिख चुका हूँ मैं, @राहुल. तो आप इंस्टा ID को फॉलो करोगे, आप चीज़ें बड़े आराम से क्लियर कर लोगे.
एंड दिस विल बी अ बेस्ट जॉब फॉर यू। जो बोल रहे हैं सर मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, सर मैं उसको कैसे करूँ, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप नो बडी हैव एनी डाउट्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आए तो कमेंट रुकते नहीं, सब बच्चे स्टडी पे बिलीव करें। आई होप तो लग जाओ डट के। किसी को दिक्कत होती है जस्ट लेट मी नो, आई विल बी हेयर फॉर यू गाइस। बाय, गुड नाइट।